اکبر، جب چوتھے آسمان پہ نکل کر کے چھپنے والے سورج کی تپش کا عالم یہ ہے کہ آدھی رات کو بھی گرمی محسوس کر رہے ہو، اس وقت جب انسان کے سر کے اوپر سورج ہوگا، چوتھے آسمان پہ نہیں، انسان کے سر پہ سورج ہوگا، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ، جس کو بعض لوگوں نے سوا نیزے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس وقت سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ جس کی پیٹھ کی تپش کا یہ عالم ہے، اس کے چہرے کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل راج محل کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مومن ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے عقائد میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے، مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے۔ دنیا کی دوسری قومیں موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتی بہت سارے لوگ، لیکن مومن ایمان والا جو قرآن کو مانتا ہے، جو انبیاء کو مانتا ہے، آخری نبی پر جو ایمان لایا، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، اور جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو کس لیے اٹھایا جائے گا؟ ہمیں اٹھانے کا مقصد یہ ہوگا اللہ اکبر کہ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں ہوگا؟ اس سے ضرور حساب ہوگا۔ انسان سے حساب لیا جائے گا، اور کس ماحول میں لیا جائے گا اس کی ایک جھلک، پھر اس کے بعد اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ میرے سارے بھائیوں کی اور ساری بہنوں کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، کس ماحول میں حساب ہوگا؟ اللہ اکبر، اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ماحول کے اندر اللہ رب العزت انسان سے حساب لے، اگر باغ و بہار کے ماحول میں انسان سے اللہ حساب لے، اللہ اکبر، رحمتوں کی فوار کے ماحول میں اگر اللہ انسان سے حساب لے، تو بھی انسان کے
बस में नहीं, तो भी इंसान की ताकत नहीं, तो भी इंसान की कुव्वत नहीं कि वो अल्लाह को जवाब दे सके। थोड़ा तसव्वुर में लाए, अगर कोई पीर वाकई कोई मुरीद किसी पीर से सच्ची मोहब्बत करता है या कोई शागिर्द अपने उस्ताद से सच्चा एहतराम करता है, वो उस्ताद का सच्चा एहतराम करता है, और अगर उस्ताद उससे पूछ ले कि बताओ तुमने फला काम क्यों किया था, तो बताओ उस्ताद के सामने क्या एक सवाल का जवाब शागिर्द देने की ताकत रखता है? हरगिज नहीं। बेटा बाप के सामने क्या कोई जवाब देने की कुव्वत रखता है? मुरीद अपने पीर के सामने क्या कोई जवाब देने की ताकत रखता है? अंदाजा करो मेरे भाइयों, गौर करो, जरा सोचो और तसव्वुर में लाओ। जब पीर के सामने मुरीद जवाब देने की ताकत नहीं रखता, जब बेटा अपने बाप के सामने जवाब देने की कुव्वत नहीं रखता, जब शागिर्द अपने उस्ताद के सामने जवाब देने की कुव्वत नहीं रखता, तो तसव्वुर में लाइए वो वादहू ला शरीक जिससे अंबिया भी डरते हो, जिससे औलिया का पिता जिसके खौफ की वजह से पिघल करके पानी होता हुआ लोगों ने देखा है, वो दास्ताने हैं अल्लाह अकबर कि कोई रोते रोते अपनी आंखें खो गया। अल्लाह के खौफ में बहुत सारे औलिया रोते रोते अपनी आंखों की बीनाई उन्होंने खो दी। कुछ का हाल ये था कि जब अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर आता तो उनका पित्ता पिघल करके, उनका जिगर पिघल करके बहता हुआ लोग महसूस करते। इसी तरह लोगों के चेहरे मायूस नजर आते, लोगों के चेहरों पर उदासियां नजर आती। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चेहरे पर आंसुओं के निशानात देखे गए अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से। अंदाजा फरमाए अल्लाह वालों की कैफियत ये है, अंबिया जिससे खौफजदा हो, सहाबे किराम जिसके खौफ में आंसू बहाए। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें, वो रब हमसे सवाल करेगा, वो रब हमारा हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। और माहौल कौन सा होगा? बागो बहार का माहौल नहीं होगा, ठंडी हवाओं का माहौल नहीं होगा, फजाओं का माहौल नहीं होगा, रहमत की फुवारों का माहौल नहीं होगा, बल्कि वो माहौल क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यौम हिसाब, जिस दिन अल्लाह बंदों का हिसाब लेगा, जिस दिन अल्लाह बंदों से सवालात पूछेगा, उस दिन इंसान की कैफियत क्या होगी? इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जरा तसव्वुर में लाओ, मई के महीने में जिंदगी गुजार रहे हो, जलसे में इंसान बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर, तो गर्मी का एहसास इंसान को बेचैन करता है। पंखे चल रहे हैं फिर भी बेचैनी है, पंखे चल रहे हैं फिर भी बेकरारी है। रात का माहौल है, सूरज निकल कर छुप चुका, छुपने में घंटों गुजर चुके, उसके बावजूद भी गर्मी का ये अल्लाह अकबर। जब चौथे आसमान पे निकल करके छुपने वाले सूरज की तपिश का आलम ये है कि आधी रात को भी गर्मी महसूस कर रहे हो, उस वक्त जब इंसान के सर के ऊपर सूरज होगा, चौथे आसमान पे नहीं, इंसान के सर पे सूरज होगा, और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। एक हाथ का फासला जिसको बाज लोगों ने सवा नेज़े से ताबीर किया है। अल्लाह अकबर। आज सूरज अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है, उस वक्त सूरज अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। जिसकी पीठ की तपिश का ये आलम है, उसके चेहरे की तपिश का आलम क्या होगा? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, कोई अल्लाह अकबर इंसान कंधों तक पसीने में होगा, किसी के मुंह में पसीने की लगाम होगी। अल्लाह अकबर। आंखें पानी बनकर बह रही होगी, इंसान के सरों में उनका भेजा ऐसे खोलता होगा जिस तरीके से चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर इंसान पानी खोलते हुए देखता है, चूल्हे पे रखी हुई हांडी में जैसे पानी खोलता है, इंसान का
बेजा उसकी खोपड़ी में खोल रहा होगा, नाक के जरिए से, कान के जरिए से उसका भेजा बह रहा होगा, ये अंदाज होगा। उस वक्त अल्लाह बंदे से उसके बारे में पूछेगा, उसकी जिंदगी के बारे में पूछेगा, उससे सवाल करेगा। सवाल कई एक होंगे, सवाल बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन एक सवाल कुरान यहाँ बयान कर रहा है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस माहौल में उस दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। नईम, नईम के बारे में अल्लाह तुमसे पूछेगा। नईम क्या चीज है? मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए। नईम से मुराद ये, नईम से मुराद ये, नईम से मुराद ये। जो एक कौल आज आपके सामने पेश करना, अक़वाल बहुत है, क्योंकि कुरान की एक एक आयत की 70-70 हजार तफासिर बयान की गई है, और ये तो जाहिरी है। इसके अलावा जो बातिनी तफासिर है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, मगर मानिए कुरान का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर दिन एक नया माना लोगों के दिलों पर, जो अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, उनके दिलों पर अब भी मानिए कुरान नाजिल होते हैं। कुरान मुक़द्दस का माना नाजिल होता है। अल्लाह अकबर। आयत नहीं नाजिल हो सकती, वही नहीं आ सकती, अब कुरान नाजिल नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत के दिल के सदक़े में उलमा के दिलों पर अब भी मानिए कुरान का नुज़ूल हो रहा है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा।